Economic development plays an important role in the growth of any society. This especially holds true in a country like India, where 65% of population lives in rural areas. Employment opportunities are not sufficient and the rural population remains ostracized. Men tend to migrate to urban areas in search of livelihood, while women remain busy with their household duties with zero incomes and no economic activity other than occasional farming activities. In 2019, ICECD along with JBGVS designed and implemented a pilot project in Rajasthan in the Sikar district to train 100 rural women towards entrepreneurship. ICECD, having developed 1 million entrepreneurs across India, came with its expertise and experience to this project. At the end of the pilot project, 68 out of 100 women started their own need-based businesses and started earning anywhere from 5,000 rupees to 45,000 rupees per month. Looking at the success and the impact achieved, it was decided to scale up this initiative further. The new project was designed to reach out to 500 women of the Sikar district of Rajasthan. The ICECD team of experts systematically began the implementation of this project. To begin with, a need assessment study was conducted in Sikar. Potential entrepreneurs and entrepreneurial opportunities were identified. Need-based training was designed. Potential women were selected for the training. A 3-week intensive training program was implemented called the Entrepreneurship Development Program, in short EDP, covering 500 women in batches of 25 each. The ICECD team of experts go to the very doorstep of these rural women, where the team went into the interiors of the rural areas of Sikar, reached out to thousands of women. To more than 3,500 women, the team passed on the awareness of the opportunities that exist for them to do business. जो स्टार्टिंग जो काम हुआ आईसेड का, वो धोत ब्लॉक के 4 गांव हैं, मंडावरा, खोरी, बाडलवास और मुंडवाड़ा। इनिशियल स्टेज में आईसेड के लोग हैं, डोर टू डोर घर में जाके महिलाओं से संपर्क करते हैं और उनका रुझान चेक करते हैं, भाई किसको कुछ काम की ज़रूरत है क्या। फिर सब सर्वे करके और उनका ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम फिक्स किया जाता है जो तकरीबन 21 दिन चलता है। हम लोग 300 से 400 महिलाओं से मिलते हैं, जिनमें से हम 100-150 फॉर्म हमारे भर पाते हैं। हम ऐसी महिलाओं को ढूंढते हैं जो घर पे बिल्कुल ना कुछ कर पा रही है या उसमें आत्मविश्वास की कमी होती है। Our team of experts reaches out to them, motivates them, and through motivation arouses their interest to want to do something, to run a business, to do an economic activity, to earn. These women were mostly not aware about the type of entrepreneurial activities to be taken up to improve their family income. Most of these women had no entrepreneurial experience to start their own businesses, and they also had very little money, 5,000 to 20,000 rupees to invest in. This is hard. It's a challenge because the women are scared. They have no confidence or any idea of what they can do to have any economic activity going, especially business. 60% of them fall in the age bracket of 18 to 30 and about 80% of them are married and have children. The family income of these women varied anywhere between 20 to 25,000 rupees, and today they are ready to run, manage and grow their businesses successfully. And the businesses include manufacturing of footwear, manufacturing of bags, manufacturing of spices, assembling of LED bulbs. Some of them also run grocery shops, garment shops. ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद जब महिलाएं अपना बिजनेस स्वयं शुरू करती है तो उनको लगता है कि हाँ देखो मेरे जीवन के अंदर भी परिवर्तन आया है। आज जो महिलाएं पूरे दिन घर के कामों में ही अपना जीवन गुजार रही थी, वो सुबह जल्दी उठ के घर का काम भी करती है, बच्चों का भी करती है और अपनी दुकान का काम भी करती है। As they start their business and they invest their own money into the business, their confidence, their ability grows and they are able to sustain, and not just sustain, even beat the difficult corona period. And more than 60% of them are today successfully running their businesses, earning anywhere between 10,000 to 25,000, some even 40,000 rupees a month. These beneficiaries were linked to market, raw material as well as finance. Strong post-training support of hand-holding was provided.
We motivated them, developed their capacities, and led them to self-reliance. They started their businesses across manufacturing, service, as well as trading sectors. Today, more than 60% of these 500 women have already started their businesses. Let's meet some of these women. एक दिन घर पे आए थे करिश्मा जी और संजय सर हमारे घर पे आए थे, तो उन्होंने आईसेट संस्था के बारे में बताया जो लेडीज़ को आगे प्रोत्साहित करती है, घर पे रहते हुए कैसे वो काम करे, कैसा अपना नाम कमाए, कैसे वो 2 रुपए अपने लिए जोड़े या अपने बच्चों के लिए कमाए। ट्रेनिंग की तो वो ये पता चला कि कैसे इस काम को करते, कि कितना कि माल लाए उसमें कितने का बेचा, कितना मुनाफा होता है। और पांडे सर ने हमारा इतना आत्मविश्वास बढ़ाया कि औरत भी है कि बहुत से काम कर सकती है। ट्रेनिंग 1 महीना की थी, उसमें दुकान के बारे में बताया और भी बहुत सारे बिजनेस के बारे में बताया। उन्होंने हमें बहुत अच्छा सिखाया, फिर कुछ प्रैक्टिकल भी लिए और सीकर में होलसेल जानकारी भी करवाई, लेन देन के बारे में, हम ग्राहक से कैसे लेते हैं, वो वापस कैसे बेचते हैं, कस्टमर कैसे उनको देखना है, टैकल करना है, कहाँ से सामान लेना है, वो सब बताया। दीपक जी सर ने, द्रौपदी मैम ने और करिश्मा मैम ने हमें बहुत अच्छे से बहुत कुछ सिखा, यानी हमारे अंदर एक अलग भावना आ जाएगी कि कुछ करना चाहिए हमें भी। जब हम ट्रेनिंग लेने गए तो सामान कैसे बेचते हैं, व्यापारी ग्राहक आता है तो उससे कैसे बात करनी चाहिए, अपना सामान कैसे बेचना चाहिए, वो सब कुछ सिखाया उन्होंने। इसलिए हमें भी थोड़ा हौसला आया कि हम भी अपने पैरों पे खड़े हो सके, कुछ कर सके, आगे बढ़ सके। बहुत चीज़ें सिखाई वहाँ पे, कैसे बिजनेस को स्टार्ट करना है, कैसे आगे ले जाना है, कैसे उसका मैनेज करना है, आगे कैसे मतलब लोगों से बातचीत करनी है आगे अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। आईसेट की ट्रेनिंग के बाद मुझे आत्मविश्वास बढ़ा। पहले मुझे मतलब किसी से बात कर से टेंशन लगता था, पर आज मैं मतलब आत्मविश्वास से बात कर सकती हूँ। कोई भी काम मुझे ऐसे नहीं लगता कि मैं नहीं कर सकती। पहले 10,000 थे, 10 से हमारे 15,000 हो गए, 15 से हमें 20,000, 20 से हमें थोड़ा थोड़ा मुनाफा हो रहा है। हमने स्टार्टिंग में ना दोनों ने मिलकर 20,000 से स्टार्ट करा था, खुद का कपड़ा लेके आए थे हम लोग। हमने इन्वेस्ट 50,000 का किया है और हम 10,000 होते हैं ना, उस पर हम 5-6 हज़ार कमा लेते हैं। और हो सकता है फ्यूचर में हम ऑनलाइन जो शॉपिंग है उसमें उसके ऐप से थ्रू जुड़े और अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ट्रेनिंग के बाद में मैंने 50 से लाख किया, लाख से 1.5 लाख किया, 1.5 लाख से 2 लाख किया, 2 से 2.5, 2.5 से 3। अब मैं लगभग मेरे 3.5-4 लाख का माल है मेरे पास, और माल पहले के बीच से बिकता भी अच्छा है और उसमें मुझे प्रॉफिट भी अच्छा होता है। मतलब प्रॉफिट तो मेरा जैसे 5 का माल बिका तो 1,000-1,500 का प्रॉफिट होता था। अब मैं 10-20 का बेचती हूँ तो मुझे आधा मुनाफा तो होता ही है। मतलब महीने का 10 से 15,000 रुपये का आराम से हो जाता है। निवेश मैंने शुरू से 1,000 रुपये का किया था, फिर मैंने 4,000 का सामान लाई, फिर मैं 8,000 का लाई और अब की बार मैंने 10-11 हज़ार का सामान लाई। 1 महीने का 3-4 हज़ार रुपये का मुनाफा हो जाता है। धीरे धीरे आगे बढ़ी, यानी आज मैं 2 लाख तक का जैसे वेट कर रही हूँ तो 10,000 तक रुपये कमा सकती हूँ। अभी तक जैसे सामान 50-60 हज़ार रुपये का और आगे बढ़ा, उसके बाद अब बिक्री अच्छी हो रही है तो मैंने 1 लाख रुपए तक का सामान अभी मेरी दुकान में है। महीना भर के 10-12 हज़ार रुपये तक मेरी बचत हो जाती है। हमारे पास 2 मशीन है, एक चप्पल बनाने की और एक फित्ते डालने की, तो उसमें हमने 1.5 लाख रुपए खर्च किए हैं। पहले मेरे को 3-4 हज़ार रुपये का मुनाफा हो जाता महीने का, अब थोड़ा ज़्यादा होने लगा, 8-9 हज़ार रुपये का। पहले मैंने 10,000 का सामान लाई थी तो कम से कम 500-1,000 रुपये का मुझे मुनाफा होता था। उसके बाद में जैसे मैंने व्यापार को बढ़ाया तो 50,000 का नहीं लगे तो कम से कम 5,000 का मुनाफा होने लग गया था। इसे जैसे और आगे बढ़ाया तो मैंने लाख रुपए का लाए, तो अब मुझे जैसे सावे वगैरह में भी मैं ऑर्डर लेती हूँ तो उसमें मुझे 10,000 का मुनाफा भी हो जाती है। आज मेरी दुकान में लगभग 3.5-4 लाख रुपए का मैंने निवेश कर दिया है, और लगभग मतलब जब सीजन नहीं रहता तो मैं 15 से 20 हज़ार रुपये, सीजन में शायद 30-40 हज़ार रुपये तक मेरा हो जाता है। आटा चक्की हमने इसलिए ली, लोग बहुत दूर दूर से पिसाने के लिए आते थे ट्रैक्टर लेके, तो हमने सोचा कि घर बैठे हम अपना यही काम कर लें। मेरे को तो ये पेंसी का अच्छा लगा, मेरा एरिया के हिसाब से, तो मैंने ये चालू किया। दिक्कत तो बहुत सारी थी आई थी, लेकिन सास ससुर ने भी मना किया था कि ये सब कैसे कर पाओगी, कैसे संभालोगी। तो मैंने सोचा कि
मैं तो करूँगी। मैं पहले किसी के सामने बोलती थी ना तो हिचकती थी और मेरे को डर भी लगता था। मैं कॉलेज वगैरह में भी ऐसे बहुत हिचकती थी और अब मुझे किसी के सामने भी बोल लेती हूँ। बदलाव आया है क्योंकि पहले तो मेरे पति पर ही सारा निर्भर था। अब मैं भी कुछ करती हूँ तो मेरी बेटियों को भी यानी कि सब कुछ दे पाती हूँ। बहुत कुछ सुधार हुआ है क्योंकि पहले तो हम घर के बाहर जाते नहीं थे। अब जहाँ भी कोई मीटिंग होती है बुलाते हैं तो हम वहाँ खुले बेधड़ के जाते हैं, हर काम शौक से करते हैं। हमारा पर्सनल खर्चा था वो हम उनसे लेते थे, अब हम उनको कमा के दे रहे हैं। मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि आप अपनी प्रतिभा को अंदर से पहचानो और उसको आगे लेके चलो और अपने पैरों पे खड़ी हो और छोटे मोटे खर्चों के लिए किसी पर डिपेंडेंट ना हो। जो अंदर का डर है, जो भय है, वो निकालो। अच्छी सोच होगी, अच्छे विचार होंगे और विश्वास खुद पे होगा ना तो असंभव ही संभव हो सकता है। हर एक लेडी में वो शक्ति है कि वो कुछ भी उनको जो चाहिए, उनका जो सपना है वो कर सकती हैं और अपने घर वालों की हेल्प कर सकती हैं। जानकी देवी बजाज और आईसाइड संस्था को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ जो कि मेरे जीवन में परिवर्तन आया। थैंक यू आईसाइड और बजाज मेरे को इतना प्रोत्साहित करने के लिए और मेरा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। आईसाइड और जानकी देवी बजाज का मेरे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जानकी देवी बजाज और आईसाइड का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने दम पे खड़े होने के लिए इतना कुछ साथ दिया। जानकी देवी बजाज और आईसाइड को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। जानकी देवी बजाज और आईसाइड को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अंत में मैं आईसाइड को धन्यवाद कहना चाहती कि इन्होंने हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन लाए और उन्होंने हमारे व्यवसाय को आगे बढ़ाया। The total investment creation out of the number of businesses that have already started is about 1.1 crore. So a lot has been done and a lot remains to be done to bring more smiles and more happiness on the faces of these women and their families.